देन नेक्स्ट आपका इमोशनल हेल्थ। मेनी टाइम्स इफ योर इमोशनल हेल्थ इज नॉट राइट स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होता तो पीसीओएस के सिम्टम भी बहुत एग्रवेट हो जाते हैं, बिकॉज कॉर्टिसोल आप निकाले जा रहे हैं, सिक्रीट हो ही जा रहा है बॉडी में। आप डाइट का ध्यान रख रहे हैं, एक्टिविटी का ध्यान रख रहे हैं, बट राइट स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, देन योर सिम्टम्स विल एग्रवेट। फिफ्थ है एनवायरमेंट। पीपल शुड नो हाउ टू डू एनवायरमेंट डिटॉक्स। बाय एनवायरमेंट मीन्स इन व्हाट सराउंडिंग यू आर, how you are getting affected. Do you know how to set right boundaries? Do you know if somebody is saying cortisol secrete तो नहीं कर देते, you do not get into that overthinking loop. पीसीओएस रिवर्सिबल है या सिर्फ मैनेजेबल है? See, it is reversible. I have seen people reversing their PCOS in the ultrasound reports. It's not there. All right. But any problem can come back. All right. If you do not take care of yourself. Any. कुछ भी हो, अब अगर मैं डायबिटीज की बात करूं या आपके वेट लॉस की बात करूं या स्किन ग्लोइंग की बात करूं, अगर आप टेक केयर नहीं करेंगे हर चीज वापस आएगी। इट्स नॉट ओनली पीसीओएस। हेलो सैसी नारी, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ लिटिल फिक्सेस, जहां हम बात करते हैं उन चीजों की जो हर रोज की लाइफ में छोटी लग सकती हैं लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। We bring little fixes because life's a lot and so are we. You know how in your 20s everyone talks about PCOS like it's only about acne, irregular periods, and weight gain? And then you hit your mid 30s, your body feels off, and suddenly none of that advice fits anymore. So, in this episode, we are talking about something that doesn't get enough attention. In this episode, we are talking about something that doesn't get enough attention: PCOS after the age of 35. Whether you are newly diagnosed or you have been carrying this label since your 20s but never really got into healing it, this conversation is for you. I'm joined by Vidhi Chawla, who is an experienced nutritionist. Vidhi specializes in helping women reverse PCOS, PCOD naturally with her Physico 360-degree PCOS reversal program, focusing on sustainable methods rather than quick fixes or hormonal treatments. With over a decade of experience, she has transformed the lives of more than 5,000 individuals with an emphasis on healthy body, lifestyle, and mindset. We are getting into what PCOS looks like in your 20s, 30s, and 40s, what healing actually means, and how to work with your body instead of fighting it. Spoiler, it's not about cutting everything you love or buying 20 different supplements. So, if you have ever felt dismissed, confused, or just plain tired of Googling your symptoms, keep listening. This one's got real talk, practical advice, and a whole lot of hope. Please help me bring more such conversations to you. Subscribe to Little Fixes on YouTube and follow us on your podcast app. Hi, Vidhi. Welcome to Little Fixes. Hi, thank you so much, Maitri. सो विधि, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यही बताइए कि पीसीओएस होता क्या है? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और बड़ी लेबलिंग भी होती है कि इसको पीसीओएस है, अब तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं लाइफ में। तो Yes. आई ऑल्सो फील कि थोड़ा मिसअंडरस्टूड भी है, और एज यू गेट ओल्डर आई थिंक और ज़्यादा ये मिसकंसेप्शंस बढ़ते जाते हैं अगर हमने पहले ही इस पे ध्यान नहीं दिया है तो। Yes, so true. So, what is PCOS? First, start with the full form. ठीक है, polycystic ovary syndrome. Okay, it's a complex hormonal and metabolic issue जिसमें हमारी ovaries के अंदर multiple cyst हो जाता है. So, poly means multiple cyst. All right. So, this condition usually, affect the working of the ovaries, जिसकी वजह से हमें irregular periods, ovulation issues, excess androgens, that is male hormone secrete होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से hirsutism, excess hair growth भी आने लग जाती है. We may get a issue of insulin resistance also, as that's why PCOS is also called diabetes of ovary. All right. Also, PCOS में inflammation होता है. So these all things we come to see in the PCOS because of the multiple cysts present in ovaries, जिसकी वजह से हमारे ovary की function disturb होने लग जाती है. And it's misunderstood because the symptoms बहुत widely है, as I was explaining you. So जैसे acne आपके हो गया, hair growth हो गया, mood swings हो गया, irregular period, there's so many things, fertility issues. So many women not even notice that कि ये issues PCOS से connected है.
All right, so हम्म that's why it creates an issue. I can just explain in a very layman language also. हमारी हर महीने cycles आते हैं periods, right? So how the egg release, like how we get pregnant, हमारा एक follicular cyst बनता है जो break होता है और उसमें से egg release होता है. So what's happening here that follicular cyst is not breaking up and egg का release भी अच्छे से नहीं हो रहा. वो cyst accumulate होए जा रहे हैं. ठीक है? So हम्म that's why it's like multiple cysts in the ovaries. ओके तो इज इट ऑल्सो कनेक्टेड टू एनी सिस्ट इन दी ओवरी बिकॉज आजकल मैं ये बहुत कॉमनली देख रही हूँ कि विमेन आर टेलिंग कि डॉक्टर ने उनको प्रेगनेंसी से पहले बोला है कि ओवरी से सिस्ट हटवा लो स्पेशली इफ दे आर अबव 30 तो क्या ये पीसीओएस से ही कनेक्टेड है या ये अलग चीज है See, that can be a different, cyst also, जिसके बारे में डॉक्टर बोल रहे हैं उनको, and that need to be removed from the body. But ओके the polycystic का it's different. There's a multiple cyst. ओके ओके हम्म अंडरस्टूड ठीक है तो आपने बोला भी कि फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं तो यंगर विमेन में है अगर पीसीओएस और एक हम्म ओल्डर विमेन में भी है तो Yes. क्या ये जो पीसीओएस है ओल्डर विमेन में स्टार्ट हो सकता है या स्टार्ट पहले ही से होता है और बाद में डायग्नोज होता है Okay. So yes, it can be diagnosed, in actually diagnosed most in the most of the cases. It can be diagnosed in, later age also, post 30s also. अगर वो early age में undiagnosed है, ठीक है? हम्म Maybe it was present, it was in a quiet stage. And maybe hormonal imbalance हो रहा था थोड़ा बहुत. But जब तक आपको menopause नहीं आता, तो आप perimenopausal age में हो, तो you get lot of, hormonal changes also. एंड ऑल्सो जैसे आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, योर स्ट्रेस लेवल, योर एक्टिव लेवल ऑल्सो अफेक्ट्स द हार्मोन्स. तो उन केसेस में भी वन कैन गेट पीसीओएस ऑल्सो, बिकॉज जब तक आपके पीरियड स्टॉप नहीं हो रहे, आपके पीरियड्स की साइकिल तो चल ही रही है ना, इट्स गोइंग ऑन, राइट? तो इट्स मेरी पेनोपॉजल एज, सो यू कैन श्योरली गेट इट. वो सिस्ट ब्रेक नहीं हो रहा, एग रिलीज नहीं हो रहा, इट कैन हैपन इन लेटर स्टेज ऑल्सो. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई सीन कि वो अनडायग्नोस्ड वाला बैठा हुआ होता है या क्वाइट वाला होता है, वो बाद में गेट्स एक्टिव ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ऑल एंड मे बी हार्मोनल शिफ्ट. ओके तो अगर मान लीजिए 35 की एज से पहले कोई प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहा है और तो ऐसा हो सकता है कि उनको पीसीओएस था बट प्रेग्नेंट भी टाइम पे हो गए प्रेगनेंसी भी नॉर्मल रही डिलीवरी भी हो गई और बाद में पता चला लाइक इज दैट Yes, आल्सो yes, 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 right. It can be possible. Yes, it can be possible. And many women with PCOS conceive also, and they come to later on stage also. This also happen. या हो सकता है वो इनिशियल स्टेज पे हो, जो कभी कभी हमारे ओवरी के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट हमारे एग्स रिलीज प्रॉपरली हो रहे होते हैं, ऐसा भी होता है. सो समटाइम्स यू कंसीव ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो द स्टेज. ओके या ओके ओके अंडरस्टूड थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दैट और हम्म फिर अगर हम 30s और 40s के पीसीओएस सिम्टम्स की बात करें तो वो 20s के सिम्टम्स से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं ओके, सो यूजुअली अगर हम अर्ली ट्वेंटीज की बात करें, अर्ली ट्वेंटीज में जो सिम्टम्स दिखाई देते, दोज आर लाइक इरेगुलर पीरियड्स, आपके एक्ने, सिस्टिक एक्ने, ये सब चीजें होती हैं. फर्टिलिटी कंसर्न्स थोड़े ज्यादा होते हैं. बट जब हम 35 ऐसे में करते हैं, तो पेरी मेनोपॉजल सिम्टम एंड पीसीओएस सिम्टम्स गेट कंबाइंड मेनी टाइम्स. ऑलराइट. तो हम्म फिर क्या होता है, उनको फटीग, बर्नआउट और वो एक हार्मोन बेली एक अलग तरीके से दिखने लग जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो देयर इनिशियल स्टेज 20 से, बट इस केस में ना 35-40 में इंसुलिन रेजिस्टेंस मेनी टाइम गेट कन्वर्टेड इनटू प्री डायबिटीज, डायबिटीज. ठीक है. और पुअर स्लीप इश्यूज भी मैंने देखे हैं यूजुअली इन माय पर्सनल केस ऑल्सो. इंसोम्निया, स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होने लग जाती है. एंड ऑल्सो दे मे सी, एज आई सेड, इंसुलिन रेजिस्टेंस इशू बढ़ रहा है, तो हाई शुगर तो हो ही रही है. दे मे गेट हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, and it majorly affects the mental health also. एंजाइटी एंड मूड इम्बैलेंसेस भी बहुत दिखते हैं. वाओ दिस साउंड सो स्कैरी तो अच्छा है यस कि इट पहले इज. ही डायग्नोज हो जाए अगर तो आप यस. बाद में उसको ज्यादा इजीली मैनेज कर पाओगे Yes, right. If see, it's very important to listen to your body. I always say your body listens to you, but that talks to you. Your body talks to you before coming to any, big issue. ठीक है, वो धीरे धीरे हम्म आपसे बताती है आपको कुछ ना कुछ इशू हो रहा है. अगर आप अपनी लाइफस्टाइल, अपने मूड में चेंज देख रहे हैं, या अपनी स्किन में चेंज देख रहे हैं, या आपके पीरियड्स में कुछ आ रहा है, फ्लो में, मतलब कुछ चेंज देख रहे हैं, तो जस्ट सी एंड ऑलवेज गेट योर ब्लड वर्क डन. एवरी 6 months, अल्ट्रासाउंड वंस अ ईयर जरूर कराओ.
टू बी ऑन अ क्लियर साइड, बिकॉज बहुत लोग टेस्ट ही नहीं कराते, डरने, ड्यू टू स्केर्डनेस कि नहीं यार रिपोर्ट में कुछ गलत आ जाएगा तो क्या होगा, क्या वो आई एम बाद में वन और ऑफ खराब हो देम। जाएगा। ट्रू ट्रू, हाँ। मैं साल में एक बार करवाती हूँ और मुझे इतना डर लगता है जाने से पहले कि कुछ आ जाएगा, फिर उसके यस। बाद खाना पीना बंद या कुछ और करना पड़ेगा, तो हर बार मैं हाँ। डरते डरते जाती हूँ। तो यू आर सो राइट कि हम लोग डर के मारे ही यस। नहीं कराते, ये नहीं सोचते कि अगर पता चल गया तो यस। शायद जल्दी सही हो No, जाएगा। I just met a girl yesterday. She came to my, clinic. उसको फैटी लिवर, शी इज 27, बट उसको हम्म, फैटी लिवर हो गया, उसको प्री डायबिटीज, तो उसका डायग्नोस पहले ही हुआ था, बट शी काइंड ऑफ करेक्टेड विदाउट वर्किंग ऑन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। उसने उस टाइम हार्मोनल पिल्स खा के थोड़ा करेक्ट कर लिया, ठीक है, आई हम्म, थिंक वो रेगुलर हो गया, पीरियड शी गॉट इट्स गॉन, and then it now came back with lot of issues in her body. She's having palpitation issues, she's having fatty liver, she's having pre-diabetic range में आ गई है वो, तो इतने issues आ रहे हैं अब उनको। So yeah, हम्म। so I want to just see कि रूट कॉज से काम करो, ऊपर ऊपर से एज ए बैंडेड सोल्यूशन मत काम करो। या दैट इज सो ट्रू। और हम्म। जैसे आपने बोला कि ये हार्मोनल पिल्स ले लिया और थोड़ी देर के लिए दब गया, बट नाउ इट इज बैक। आई यस। यस। रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में, उसके साथ भी यही हुआ था। तब हम लोगों ने कभी नाम नहीं सुना था, वी वर वेरी यंग, हम्म। लाइक मे बी 18 19। तो हम्म। उसके डॉक्टर ने बोला कि इसको पीसीओएस हो गया है, और कुछ शी वाज गिवन हार्मोनल पिल्स। हम्म। उसके फिर उसकी दवा चलती रही, फिर पीरियड्स रेगुलर हो गए एंड शी स्टॉप टेकिंग इट। She हम्म। got pregnant much later, matlab like हम्म। many years later, after 35 or यस। something. यस। यस। So I don't know how was it for her, but yes, उसको पहले दबा दिया गया, बाद में क्या हुआ, we don't know. तो ये जो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, एक तो कि क्विक फिक्स पे जा रहे हैं कि चलो जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि कई बार यस। डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि चलो जल्दी से ठीक कर दें। तो हम्म। ये जो न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग पीसीओएस, वो क्या है बिसाइड्स ऑब्वियसली गोइंग फॉर हार्मोन्स? Okay, so see, first I want to say here, hormones are not bad if taken in a correct way. There's a lot of supplements, Nowadays, doctors have also evolved, many doctors. So you हम्म, be also, just be alert. जैसे कहते हैं ना, एक alert consumer बनो कोई प्रोडक्ट लेने से पहले, तो किसी डॉक्टर के पास भी जाओ तो एक be a knowledgeable and questionable, curious and inquisitive patient who can ask questions, right? हम्म, Because I met a doctor like, I think last month she really prescribing right supplements to the patients of PCOS, not हम्म, putting them into metformin or any hormonal pills. First thing, those are not bad, but पहले supplement से करो, नहीं होता तो then second में हम start कर सकते हैं, ठीक है? ओके, And second thing, if I talk about mistakes, like पहली mistake लोग बात करते हैं over restricting calories, going on lowest carb diet, that's very bad, without understanding the hormonal imbalance and root cause कि करना क्या है, सीधा अपनी डाइट को कट कर देते हैं। और बहुत लोग सोचते हैं कि वेट गेन इज इक्वल टू पीसीओएस, वेट लॉस कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, इसलिए वो अपनी कैलोरीज कट कर देते हैं, बट दैट्स नॉट द केस, ओके। बहुत लीन पीसीओएस भी होता है, इफ यू आर अवेयर और नॉट, लाइक मेनी पीपल नॉट इवन अवेयर देयर इज अ लीन पीसीओएस आल्सो। सो पीसीओएस का सिम्टम भी हो सकता है वेट गेन, जरूरी नहीं है। यू नीड टू टेक अ करेक्ट डाइट, यू डू नॉट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर डाइट टू एन एक्सटेंड कि वो और खराब कर दे। आई गिव एन एग्जांपल, जैसे बहुत लो कार्ब पे अगर हम जाएं तो आपको उल्टा एचपी की एक्सिस, आपकी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एड्रीनल एक्सिस होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के और चांसेस होते हैं। All right. So we should not restrict our meals to that extent. Take a support from any, expert. Second, the people start skipping their meals. रिस्ट्रिक्ट तो करते हैं, मील्स भी स्किप कर देंगे, उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बहुत डिस्टर्ब होने लग जाते हैं अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एंड एज आई सेड, दे फोकस ऑन ओनली वेट लॉस, ये मिस्टेक पीपल करते हैं। ओवर एक्सरसाइज, people hitting the gym like for 2 hours, and just see, exercise is for relaxing your body and fat loss. But अगर आप अपनी बॉडी को ड्यू टू एक्सरसाइज एक स्ट्रेस जोन में डाल रहे हैं, आप पनिशमेंट जोन में, तो वो आपको बेनिफिट करने की बजाय इट विल हार्म यू मोर। ऑल राइट, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उतना एक्टिविटी करो जितना रिक्वायरमेंट है। 45 minutes to 1 hour activity is pretty good for one, not over exercising, because that clearly leads to cortisol spike एंड बर्नआउट। और कॉर्टिसोल जब जब स्पाइक होगा, आपका इंसुलिन हार्मोन काम नहीं कर पाएगा, और मैंने बताया पीसीओएस, डायबिटीज और ओवरी, तो आपका वो इश्यू आएगा, इंसुलिन और अच्छे से काम नहीं करेगा, यू मे एंड अप गेटिंग इनटू डायबिटीज और प्री डायबिटिक रेंज।
ठीक है। हम्म। एंड पीपल ऑल्सो, जैसे मैंने बैलेंस डाइट की काम बात की, तो लोग सोचते हैं कि पीसीओएस है, डाइट डिस्टर्ब, दे डू नॉट एम्फोसाइज ऑन प्रोटीन बिकॉज हमारे इंडियन की डाइट में वैसे प्रोटीन कम है। नाउ डेज पीपल आर गेटिंग लिटिल अवेयर, बट पहले भी क्या होता था, आज भी बहुत घरों में ही होता है, वो एक कटोरी दाल बन गई तो जैसे हाँ प्रोटीन पूरा हो गया एक बार दाल खा ली, बट दैट्स हाँ। नॉट इनफ, दे नीड टू वर्क ऑन प्रोटीन एंड गुड फैट ऑल्सो। तो मिस्टेक वो यही करते हैं कि प्रोटीन और फैट का टेक केयर नहीं करते। फैट इज ऑल्सो नॉट enemy, good fat is required by the body, ठीक है। हम्म। एंड टेकिंग सप्लीमेंट्स themselves, प्लीज कनेक्ट एक्सपर्ट एंड टेक सप्लीमेंट। अपने आप को सेल्फ प्रिस्क्राइब करके मत शुरू कर दो कुछ, दैट ओनली आई वुड से द मिस्टेक्स पीपल डू। हाँ, ओके। तो जैसे आपने प्रोटीन बोला, तो अगर हम लोग घर पे डिस्कस करते हैं, कभी मम्मी से बोला कि प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना है, ये करना है, तो शेयर से कि हम लोगों ने तो कभी नहीं लिया, हम लोग तो दाल रोटी खाते थे और सब सही था, अभी भी सही है। तो ये जो प्रोटीन वाला एंगल है, ये अभी ज़्यादा क्यों आ रहा है? ओके, सो आई वुड से कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं तो जस्ट बी इनक्विजिटिव, उनसे कन्वर्सेशन करो कि मम्मा आपने नहीं लिया तो आज डू यू फील हेल्दी, हाँ, हाँ। आपको क्या लगता है, ठीक है। हाँ, हाँ। आपको क्या लगता है, आप हेल्दी फील करते हो, आर यू एट योर राइट हेल्थ? बट यू विल सी लॉट ऑफ वुमेन आर नॉट इन देयर राइट हेल्थ। आई गेट लाइक 60s की एज में खड़े खड़े उनके फ्रैक्चर भी हो जाता है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ। द बोन डेंसिटी सो लो बिकॉज बोन से हमारी कैल्शियम से नहीं होती, दे आर सराउंडेड बाय मसल्स एंड मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, हुँ, ऑब्वियसली, ठीक है। सो आप उनसे कन्वर्सेशन करो एंड आई थिंक उस टाइम भी वो प्रोटीन में कुछ ना कुछ लेते हैं, मिल्क डेयरी बहुत चला जाता था एंड दैट टू वो बहुत सेफर वे में उनका क्लीन प्रोटीन उनको मिल जाता था, डेयरी के मिल्क के थ्रू, कर्ड के थ्रू। ये भी चीजें बहुत होती थी, लाइक इन द अर्लियर स्टेज व्हाट आई हियर फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड ऑल। तो फिर उनका कवर अप हो जाता था बहुत ज्यादा, बिकॉज दे यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ बटर मिल्क एंड ऑल, ठीक हुँ, है। हुँ, मिल्क हो गया, कर्ड, ये सब चीजें रहती थी। एंड आई ऑल्सो से पैकेट वाला प्रोटीन सबको लेने की जरूरत नहीं है अगर आप डाइट से कवर कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। बट yes, nowadays lot of brands with the clean ingredients are coming up in the market, you can choose wisely because people know ki everyone is getting, evolving and educating themselves, so many brands are coming with the clean products. हुँ, You हुँ, just need to make a right choice for yourself and food से करो। आप अपनी मतलब पेरेंट्स से कन्वर्सेशन करो प्रॉपरली, हुँ, ठीक है। हुँ, हमें हमें जिंदगी धक्का मार के नहीं जीनी कि अगर आप हेल्दी नहीं है जिस तरीके से कर रहे हैं, जी। हमें एंजॉय करनी है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू एम्फसाइज ऑन प्रोटीन टू लीड अ हेल्दी लाइफ। हम ओल्ड एज में भी बेंड हो सके, अपने सामान उठा पाए, ये हुँ, चीजें हुँ, कर पाए। इससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ट्वाइस अ वीक इम्पॉर्टेंट है टू बिल्ड अ मसल्स, because we see our parents lack somewhere, they may be living, and here I would also say because हमारे पहले वाले पेरेंट्स को वल्नरेबिलिटी भी नहीं आती थी, दे आर नॉट वल्नरेबल, सो वो हुँ, हुँ, दिखाते भी नहीं है अपना दर्द ना, दे डू नॉट यस, शो दैट, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, सो मे बी दे फीलिंग दैट इनसाइड, तो एक कन्वर्सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है because they are हुँ, moving around the conditioning they are just getting since a long time, through ages. तो हुँ, बात हुँ, करोगे तो they will understand if you explain the benefits and everything. I हुँ, hope this हुँ। helps the audience. Yes, yes, because see, when I started working out, I was maybe 30 years old, 30, 31. तो मेरी मम्मी तब ये कहती थी कि ज़्यादा मत किया करो, या तो मसल्स बन जाएँगी, वो तो मिसकंसेप्शन पहले बहुत ज़्यादा था, अब तो आई थिंक कम हो हाँ, गया हाँ, है, हाँ। और मतलब कुछ और हो सकता है, चोट लग सकती है। फिर धीरे-धीरे उनको समझ में आया कि नहीं, वर्कआउट इम्पोर्टेंट है। नाउ Yes. शी इज़ आफ्टर माय ब्रदर कि जाओ जिम जाओ, आज क्यों नहीं गए? करके आओ वर्कआउट। और खाने को लेकर वो अभी भी थोड़ा लीनिएंट हैं, बट येस शी वांट्स अस टू ईट हेल्दी। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं और थोड़ा-थोड़ा Yes. एजुकेट करते रहते हैं, Yes. तो भले ही बिल्कुल हमारे लेवल पे ना आए, लेकिन वो Yes. समझने लगते हैं, और आई But एम they श्योर कि evolve. हमारी भी होंगी चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते हैं। Yes, right. Because see, हम भी इवॉल्व होते हैं बहुत स्टेजेस पे, दे ऑल्सो इवॉल्व, मे बी उनको किसी ने कभी सिखाया ही नहीं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अवेयर, इट्स नॉट देयर मिस्टेक ऑल्सो, it's just about येस। having a conversation and educating them. So if you will हुँ। have a conversation, they will understand. यस, दैट इज़ सो ट्रू। Yes, और yeah. विधि, अगर मान लीजिए मैं 35 प्लस हूँ, मुझे पीसीओएस है, मुझे पता चल गया है, और शायद पहले से Hmm. भी था, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं उस पे वर्क करूँ। तो Hmm. ऐसी क्या
टॉप चीज़ें हैं, मे बी टॉप 5 और मे बी यू हैव मोर, कि हमें अभी से करना शुरू कर देना चाहिए टू फॉर अ हेल्थियर अस? Okay, so see, I always say take care of six pillars of health if you want to achieve your highest health, whether it's PCOS or anything else. पहला, what you eat, take care of what you eat, all right? बहुत जरूरी है आपकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव आपको कोई भी इशू है, आपको हर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, बट द परसेंटेज मे वेरी. Second, how you eat means how you consume your meal. Because if you do not correctly consume your meal, that will not be properly nurture you. So be mindful. Remember 5 S of mindfulness. ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखो. Then activity. बहुत जरूरी है 45 मिनट्स एक्टिविटी इंक्लूड करना अपनी लाइफस्टाइल में. Then next आपका इमोशनल हेल्थ. Many times if your emotional health is not right स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होता तो पीसीओएस के सिम्टम भी बहुत एग्रवेट हो जाते हैं. बिकॉज कॉर्टिसोल आप निकाले जा रहे हैं, सिक्रीट हो ही जा रहा है बॉडी में. आप डाइट का ध्यान रख रहे हैं, एक्टिविटी का ध्यान रख रहे हैं, बट राइट स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, देन योर सिम्टम्स विल एग्रवेट. Fifth है environment. People should know how to do environment detox. By environment means in what surrounding you are, how you are getting affected. Do you know how to set right boundaries? Do you know if somebody is saying cortisol secrete तो नहीं कर देते, you do not get into that overthinking loop. So इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. As a dietitian health coach, I would say this कि what you eat पे करो, but ये सब चीजें they are just interconnected with each other. सो अगर चाहते हो पीसीओएस एग्रवेट ना हो आगे जाके तो इन सब पिलर्स का ध्यान रखो. ओके, ओके। तो विधि, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आपने बोली, उसमें से पहली चीज़ आई वांट टू नो, ये 5 एस ऑफ माइंडफुलनेस क्या होता है? ओके, सो 5 S ऑफ माइंडफुलनेस होता है आपका. पहला S है सिट डाउन, आराम से बैठ के खाना खाओ. दूसरा S है स्लोली स्लोली च्यू योर फूड. टेक्स 20 मिनट्स फॉर ब्रेन टू रजिस्टर योर फूड, एंड च्यू करके खाने से न्यूट्रिएंट्स भी करेक्टली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट होते हैं. ठीक है. हुँ, हुँ। थर्ड है आपका S सेवर. सेवर मीन्स एंजॉय करो फ्लेवर. बी माइंडफुल व्हेन यू कंज्यूमिंग योर मील. फोर्थ है सिंप्लीफाई. अपनी मील्स को इतना फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करो जो आपका सस्टेनेबल है, जो लाइफ लॉन्ग कर सकते हो. फिफ्थ है एस है स्माइल. स्माइल एंड ईट. डू नॉट कंज्यूम योर मील इन अ नेगेटिव इमोशन. अगर नेगेटिव इमोशन में आप खाना खाते हैं तो फूड विल नॉट नर्चर यू. यू विल बी इनटू योर सिंपैथेटिक एंड सर्वाइवल मोड. और जब आप अपने सर्वाइवल मोड पे होते हैं, द बॉडी डज नॉट गेट नर्चर थ्रू फूड. ओके, आई टेल दिस टू माय डॉटर, शी इज़ 8। वो हमेशा मुँह बना के खाना खाती है, आज भी सब्ज़ी-रोटी बना दी, तो मैं कहती हूँ कि देखो, अगर तुम खाने की रिस्पेक्ट नहीं करोगी, उसको अच्छे मन से नहीं खाओगी, तो खाना भी तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। बट मुझे नहीं यस, पता यस. था कि इसका नर्वस सिस्टम से भी नर्वस, कनेक्शन यस, है। यस, इसका ना. सो आई हुँ, ऑलवेज से अगर कुछ नहीं कर सकते ना, फूड एफर्मेशंस कर लो. हम हुँ, हुँ। बचपन में करते थे ना, थैंक यू गॉड फॉर द फूड ऑन माई प्लेट, थैंक यू गॉड हाँ, दिस फूड विल नर्चर मी. सो जस्ट राइट 5 फूड एफर्मेशंस एंड डू बिफोर मील. अगर लग रहा है कि रिलैक्स नहीं है तो वो ना रिलैक्स कर देगा, वो थैंक यू सुनाई देगा बॉडी को, वो कामिंग लाएगा, इनर पीस क्रिएट करेगा. एंड यू कैन ऑल्सो टेक 2 or 3 डीप ब्रेथ्स एंड देन कंज्यूम ए मील. अगर आपको लगता भी है कि खाना खाने से पहले कोई मूड ऑफ हो गया है, किसी लड़ाई हो गई है, समथिंग. So I always suggest do food affirmation and 2 3 deep breaths. It's really help in shifting your nervous system. ओके, वॉव! तो ये Yes. अनएक्सपेक्टेड आउटकम था हमारे कन्वर्सेशन का। लर्निंग अबाउट इट। और Yes. विधि, आपने एक चीज़ और बोली, 45 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, तो ये Yes. हर दिन करनी होती है? See, I always say move according to your schedule. 7 days नहीं कर सकते तो 4 या 5 days भी करोगे तब भी चलेगा. ठीक है. हुँ, अपने आप हुँ। को बर्नआउट सिचुएशन में मत लो, बट ट्राई टू इंक्लूड दैट इन योर लाइफ. अगर आप डेली नहीं कर पाते, डू सम. 45 नहीं कर पा रहे तो हर मील के आधे घंटे बाद 10-10 मिनट की वॉक कर लो, दस हुँ, पंद्रह हुँ, मिनट की. हुँ, ठीक है. एटलीस्ट आपका इंसुलिन का जो वर्किंग है वो बेटर होगा. बट हुँ। अगर टाइम निकाल सकते तो यस, 4 to 5 days मिनिमम करो. ओके, और किस तरीके की एक्टिविटी करनी चाहिए विमेन को? कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए या स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? See, just strength training that is twice or thrice a week is enough. All right. Or baki they can choose any activity what they love. They can do yoga. They can do any cardio. They can do like Zumba आजकल है, डांस वर्कआउट, कुछ भी करे what they love. क्योंकि ना आप ये समझिए जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसका एक मोटो है डोपामिन सिक्रीशन भी. फैट बर्निंग तो है. ठीक है. आई जस्ट ऑलवेज से दिस टू माय क्लाइंट्स कि वेन एवर योर बॉडी फील अनसेफ इट स्टोर्स फैट इन योर बॉडी.
ठीक है? यस। या सो एक एक्टिविटी के थ्रू भी आपको कामनेस और इनर पीस क्रिएट करना है बाय सिक्रीशन ऑफ डोपामीन एंड आल्सो के रिसर्च सेज कि आप जब एक्टिविटी करते हैं दैट्स अ नेचुरल प्रोबायोटिक टू योर बॉडी ओके सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिविटी करें दैट यू शुड लव इट शुड नॉट एक्ट एज अ पनिशमेंट टू यू या जबरदस्ती करना पड़ रहा है मेरे को नहीं करना नो इट शुड बी अ नेचुरल थिंग यू शुड लव इट सो आप कुछ भी करो एज डांस वर्कआउट करो आप कार्डियो करो कुछ योगा करो और जिम हिट करके कार्डियो करो एनीथिंग यू लव बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 या 3 दिन जरूर इंक्लूड करो हफ्ते में ओके। सी मेरे साथ क्या होता है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना अच्छा लगता है, डंबल्स उठाना। पर क्योंकि उसमें रिपिटिशन होते हैं मोस्टली बिकॉज़ दैट इज़ मोर हेल्पफुल, तो मुझे लगता है यार कितना बोरिंग है, लेकिन करना है क्योंकि अपनी हेल्थ बनानी है। तो क्या वो मुझे नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर सकता है ऐसा सोचना, या फिर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? ठीक है अगर आपका ब्रेन देखो आपका ब्रेन इज अ फ्री ड्रग टू योर बॉडी ठीक है तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो और कर रहे हो तो इट मे अफेक्ट बट उसमें कंटेंट फीलिंग फैलाओ जस्ट कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड टेल योर बॉडी हाँ ये जरूरी है ठीक है तो हर रोज वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए वो 1 दिन आई 2 दिन आई 3 दिन आई बट अगर आपने आपको कंटेंट कर लिया उस चीज में तो वो नहीं आएगी अगर वो हर रोज आ रही है इसका मतलब आपको कुछ वर्क करने की जरूरत है यू नीड टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप विद योरसेल्फ और विद द एक्टिविटी और विद समथिंग you need to reparent yourself you need to do something ओके, ओके, गॉट इट। थैंक्स विधि फॉर दैट। और अगर हम्म खाने की बात करें, तो अ, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल प्लेट की बात करें हम्म फॉर अ वुमन, मान लीजिए मैं अपना अवतार देती हूँ कि मैं 38 हम्म इयर्स की हूँ एंड आई वर्क आउट 5 टाइम्स अ वीक, अराउंड 45-50 मिनट्स के लिए, और मेरी मॉडरेटली एक्टिव लाइफ़स्टाइल है अदरवाइज़, मतलब, और या आई ईट एग्स, बाकी और कुछ नॉन-वेज नहीं खाती हूँ। और प्रोटीन हम्म सप्लीमेंट ले सकती हूँ। तो अगर मान हम्म लीजिए मेरा अवतार है, तो अगर मेरी एक आइडियल प्लेट बने लंच के लिए, तो उसमें क्या-क्या हम्म होना चाहिए? ओके सो अगर देखो आप पीसीओएस की आइडियल प्लेट की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन वेजिटेबल्स आल्सो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आपके हुँ, अच्छा एक सैलड होना चाहिए because those salad will provide you fiber vitamin minerals antioxidants which will help in reducing the inflammation and inflammation is also one of the root cause of many medical issues as well as your pcos हुँ, ठीक है तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे तो एक और आपकी शुगर स्पाइक जो हो रही है उसको भी कंट्रोल करेंगे सो आपकी एक हाफ प्लेट जो होती है वो एक वेजीज जरूर होना चाहिए सैलड विच पीपल मिस ऑन खाली रोटी सब्जी या किनोआ कर्ड ये सब चीजें ले लेते हैं ठीक है हुँ, देन सेकेंड 1/4 ऑफ योर प्लेट शुड हैव प्रोटीन लीन प्रोटीन ठीक है हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन में जैसे आप एग्स इंक्लूड कर रहे हो या लेंटिल्स लेग्यूम्स करो आजकल बहुत आ रहे हैं लेंटिल लेग्यूम में कार्ब्स भी होते हैं हुँ, कि हुँ, इतना हुँ, प्रोटीन नहीं मिलता या बट इट्स ओके अगर आपको जितना प्रोटीन मिल रहा है 6-7 ग्राम या 8 ग्राम मिल रहा है दैट्स इनफ ऐड हो जाएगा उसके साथ कर्ड का बोल लो ओके। ठीक है तो आप एक मील में प्रोटीन बढ़ा दोगे ठीक है हाँ, हाँ। ऑलराइट या रोटी में कुछ आप ले सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं तो लीन प्रोटीन का एक सोर्स और एक और प्रोटीन आप लो 1/4 मेन मील हो गई सपोजिली हमने सोया ले लिया या दाल ले ली या एग ले लिया या पनीर ले लिया टेम्पे भी आजकल आने लग गया है टोफू ले लिया ये सब चीज नॉन वेजिटेरियन तो चिकन ले लिया आपका तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट ऑल हुँ, राइट हुँ, एंड देन उसके बाद आप एक इंक्लूड करेंगे अपना हेल्दी कार्ब ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ राइट कार्ब विच इज गुड दैट शुड बी अ होल ग्रेन ओके हुँ, हुँ, होल ग्रेन में आपका ओट्स हो गया आपका किनोआ हो गया आपके मिलेट्स हो गए व्हीट भी इंक्लूड कर सकते हैं ऐसा नहीं है पर होल व्हीट लें ये जरूर ध्यान रखें बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन यू बाइंग अ पैकेट ऑफ आटा उसमें वो व्हीट सिर्फ लिखा होता है वी डोंट नो रिफाइंड व्हीट मिक्स होता है तभी बहुत लोग व्हाइट व्हाइट रोटीज चाहते हैं आजकल ना हाँ, सो हाँ, रीड योर पैकेट की वो होल व्हीट है कि नहीं बट यस आई डू नॉट रिकमेंड इंक्लूडिंग व्हीट 3 टाइम्स अ डे ठीक है ओके। आप कोशिश करें एक बार व्हीट ले लिया तो दूसरे टाइम आपने ओट्स ले लिया किनोआ ले लिया और एक बार मिलेट ले लिया ठीक हुँ, है हुँ, ओके। All right, so this way you can do. Also, healthy fats जरूर include करें because healthy fats are important for your hormone production also and anti-inflammatory effect also. Healthy हुँ, fat कैसे करेंगे? आप कुकिंग ऑयल राइट चूज करो, घी इंक्लूड कर सकते हो या आप कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर सकते हो. Also include nuts and seeds in your diet. This will also help in providing you good fats. ठीक है तो हुँ, अगर आपकी प्लेट है तो प्लेट में अगर सीड्स डाल रहे हो कर्ड में चिया सीड्स डाल सकते हो ठीक है हुँ, एंड देन उसमें आप रोटी पे घी लगा सकते हो इस तरीके से आ गया या जो सब्जी बना रहे हो वो फैट हो गया हुँ, हुँ, डिपेंडिंग तो हुँ, ये हेल्दी फैट भी आपके अंदर चले गए ठीक है एंड देन उसके बाद लास्ट आई वुड से एडिशनल थिंग जो हो गई ये आपकी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए
विटामिन मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देन मैक्रो हो गए प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। सो ये आपकी हेल्दी प्लेट हो गई, राइट? इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए। बट एडिशनल टू दिस हमने प्रोबायोटिक भी लिया, कर्ड। ठीक यस। है। एंड सपोजिटली आपको डाइजेशन एनहांस करने के लिए जैसे कोई जीरा या भुना जीरा कर्ड में डाल सकते हो, कुछ ऐसे भी कर सकते हो कभी कभी। दैट ऑल्सो हेल्प यू। कुछ लोगों को जैसे मैं बोलती हूँ ज्यादा टर्मरिक, अगर मैंने टर्मरिक टी के फॉर्म में डे में नहीं दी तो मैं कहती हूँ कुछ ऐसा कुछ इंक्लूड कर लो, एंटी इन्फ्लेमेटरी थिंग इन योर डाइट। ठीक है। सो एडिशनल ये चीजें ले सकते हो, तो दिस इज लाइक अ हेल्दी प्लेट फॉर अ बीसीओएस पर्सन। ओके, आपने राइस नहीं बोला। हाँ, राइस अच्छा नहीं लेना राइस। चाहिए? अच्छा राइस नहीं बोला, हाँ राइस भी इंक्लूड कर सकते हैं आप फिर कार्ब्स में, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट एक मैं टिप देना चाहूंगी, अगर आप सपोजली प्री डायबिटिक में आ गए हैं, तो आई प्रेफर वन डे ओल्ड राइस, क्योंकि ना राइस में स्टार्च होता है। तो हम्म, वन डे एयर टाइट कंटेनर में अगर आप राइस को स्टोर करते हैं, द स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंट स्टार्च एंड दैट डू हम्म, नॉट स्पाइक अप द शुगर लेवल। फर्स्ट थिंग, ठीक है। ओके। सेकेंड, अब राइस आराम से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डेली बेसिस में नहीं, आई वुड से ट्वाइस वीक, क्योंकि सर वैरायटी इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं हर चीज के लिए वैरायटी बोल रही हूँ, ट्वाइस इंक्लूड करो या थ्राइस इंक्लूड करो अपनी डाइट को। ओके, मतलब मुझे लगा कि राइस खाना चाहिए कि नहीं नहीं खाना मैंने मिस चाहिए नहीं, विद मैंने मिस देसी कर घी दिया और होगा all। यार, यू कैन ईट राइस। नहीं नहीं, दैट इज ओके, लाइक आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। हाँ नहीं नहीं, यू कैन टेक राइस फॉर श्योर। ओके, ओके। और जब हम इस इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं और जो-जो चीज़ें आपने सजेस्ट की, तो इससे फिर हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती होगी। तो आपने अपने क्लाइंट्स में क्या चेंजेस देखे हैं इमोशनल लेवल पे? सी इमोशनल लेवल पे उनको बहुत क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देयर इमोशंस आल्सो। एज आई सेड ना, डाइट डू प्ले अ रोल इन दैट, बिकॉज फ्यू डेफिशिएंसी ऑफ हमारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ है। सो व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर हेल्थ, उनके ब्रेन फॉग इश्यूज भी बहुत करेक्ट होने लग जाते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है। ब्रेन फॉग मतलब जैसे कुछ बोल रहे हैं भूल जाना, कंसंट्रेट ना करना, कर पाना। सो वो चीजों में आती है क्लैरिटी। मूड स्विंग्स बहुत करेक्ट होने लग जाते, दे एबल टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्टिंग। ठीक है। हुँ, एक कामनेस आ जाती है, दे एनालाइज सिचुएशन एंड देन दे डू। ऑल्सो मेंटल हेल्थ में, उनकी मेंटल हेल्थ में करेक्टनेस आ रही होती है, तो उनकी स्लीप भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती है। द क्वालिटी, बिकॉज मेनी पीपल कम टू मी एंड से कि हमारा रात को भी ब्रेन चल रहा होता है, ओवर थिंकिंग, मतलब इट्स हुँ। गोइंग। मैं सो रही हूँ बट मुझे लग रहा है समथिंग और द अदर सोच रही हूँ, सो दैट कामनेस आ जाती है स्लीप के टाइम में। सो ऑल दीज चेंजेस आई सी इन माय क्लाइंट्स। ओके, और इमोशनल चेंजेस के अलावा अगर फिज़िकल चेंजेस की बात करें तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट टू फील लाइक? सी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं, ठीक है। फिजिकल में वी कैन से ऑल्सो पीरियड्स भी रेगुलर होने लग जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टेमिना, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है दैट वे। एंड ऑल्सो इन इमोशनल दे improve their relationship with the food also when we start working on all these things, हुँ, हुँ, बिकॉज हुँ। जितने लोग मेरे पास आते हैं उनका रिलेशनशिप फूड के साथ भी बहुत डिस्टर्ब होता है। It can be due to past conditionings or seeing someone or through experiences, so that also I see a shift in improving a relationship with the food also. So physical में skin बहुत अच्छी होने लग जाती है, they start seeing the glowing skin also, hair fall भी रुक जाता है। So all these changes they see in themselves, and gut health improve हो जाती है, बहुत लोगों को gut health का issue होता है। They passing, acid reflux बहुत correct हो जाता है, या constipation issues होते हैं, that start getting corrected। हुँ, हुँ। तो हम डाइट और वर्कआउट से पीसीओएस को फिक्स कर सकते हैं या ऑल ऑफ अस नीड सप्लीमेंट्स आल्सो? ऑल्सो आई वांट टू मेंशन, जैसे मैंने बोला, सिर्फ डाइट और वर्कआउट से कभी कोई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस दे वर्क ऑन द मेंटल हेल्थ आल्सो। हाँ। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने देखा कुछ केसेस में आप दोनों चीजों का ध्यान रख रहे हो, बट अगर स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे हो, समथिंग इज ट्रबलिंग यू इनसाइड, यू कैन नॉट। ठीक है। एंड सप्लीमेंट सबको जरूरत नहीं होती, सम पीपल कैन डू विदाउट सप्लीमेंट्स आल्सो, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स। व्हाट आई डू अ 2-3 मंथ्स का, जैसे मैं ट्राई करती हूँ कि नेचुरली हो। अगर नहीं होता देन आई प्रिस्क्राइब द सप्लीमेंट्स। हुँ, हुँ। ओके। और अगर किसी का पीसीओएस लेट डिटेक्ट हुआ है, नाउ दे आर फीलिंग कि अब तो बहुत बहुत लेट हो गए हैं, अब क्या ही हो हम्म। सकता है। तो ऐसी वुमेन को आप क्या बोलना चाहोगे सो दैट दे डोंट फील डिफीटेड? बिकॉज़ इस एज में फिर और बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, प्लस आपको पता चल गया कि ये यस। कंडीशन भी है। तो फिर यस। क्या? So I would say to that woman, it's never too late.
ओके, इट्स नेवर टू लेट, यू कैन वर्क ऑन योर हेल्थ। सी, अगर लेट भी हुआ है डायग्नोज, बट इफ यू विल नॉट वर्क नाउ, आपका पेरी मेनोपॉजल एज भी आ रहा है, देन मेनोपॉजल, इफ यू विल नॉट वर्क ऑन दीज हार्मोन्स, you will have a like lot of toll on your health. So start working on it नाउ। ओके, किसी भी चीज के लिए कभी लेट नहीं होता। अभी भी आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो करेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़े मे बी पीरियड्स बहुत लेट होते तो पीरियड्स रेगुलर नहीं ज्यादा हो पाते, बिकॉज वो मेरी पेनापॉज एज आ रही होती है, तो यू आर अप्रोचिंग दैट मेनापॉज। अदरवाइज रेस्ट थिंग्स में यू कैन सी मार्वलस चेंजेस। ओके, तो आपने हमें एक सिल्वर लाइनिंग दी है विधि। तो हमें लास्ट में ये बताइए कि पीसीओएस रिवर्सिबल है या सिर्फ मैनेजेबल है? See, it is reversible. I have seen people reversing their PCOS in the ultrasound reports. It's not there. All right. हुँ, But any problem can come back. All right. If ओके। you do not take care of yourself. Any. कुछ भी हुँ, हो, हुँ, आप अगर मैं डायबिटीज की बात करूं या आपके वेट लॉस की बात करूं या स्किन ग्लोइंग की बात करूं, अगर आप टेक केयर नहीं करेंगे हर चीज वापस आएगी। इट्स नॉट ओनली पीसीओएस, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आप कहेंगे हाँ आप तो रिवर्स हो गया, अब तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखूंगी, मैं हाँ। कुछ भी खा रही हूँ, मैं आराम से सेडेंटरी लाइफस्टाइल लिव कर रही हूँ, मैं रात को 2-2 3-3 बजे सो रही हूँ, 4 घंटे की नींद ले रही हूँ। सो ऑल these things, I think I missed one pillar in the 6 pillars, that is sleep. I guess I हाँ, हाँ। did not talk about sleep. Sleep is very important. That's 7 to 9 hours sleep. So when I हुँ, talk about sleep now, so I just recalled sleep बहुत important है. Minimum 7 hours. People do not give importance to that. अगर आप सोएंगे नहीं ढंग से तो बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं करेगी, हार्मोन बैलेंस नहीं होएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गुड स्लीप। तो अच्छी स्लीप के लिए क्या करें? ये सब जो डाइट और लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं, इससे अपने आप स्लीप इम्प्रूव होती है या वी हैव टू डू समथिंग मोर? See, it depends on the root cause of the problem, कि why you're not getting sleep. If it's just nutritional deficiencies or due to hormonal imbalance, because there's a hormone melatonin which is involved in the getting you sleep, right? अगर वो है तो वो करेक्ट हो जाएगा, बट अगर आपका कोई पास्ट है, ट्रॉमा है या पास्ट कोई अनहील्ड पार्ट है, वो उसकी वजह से ट्रबल हो रहा है, तो हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। हुँ, Right? हुँ। So we work on that through, maybe inner child healing or inner child connect activities, reparenting, some mindful activities, which is like a part of my program also. So I make ओके, people do that also. Because बहुत cases में मेरा जो root cause PCOS का होता है वो reports में आ जाता है, but कुछ cases में it is like past childhood trauma or some, young age trauma या conditioning जिसकी वजह से वो correct नहीं कर पा रहे होते. So we need to work on that. ओके एंड तो विधि यू sleep सेड तभी ठीक होएगी। ओके अंडरस्टूड। सो विधि यू सेड मेलाटोनिन, तो आजकल Yes. उसके भी सप्लीमेंट आते हैं, क्या वो लेने चाहिए? सी, आई डोंट रिकमेंड दैट, ठीक है? बिकॉज आप नेचुरली प्रोड्यूस करने की कोशिश करो। अगर आप हुँ, एक आर्टिफिशियल अपना हार्मोन डाल रहे हो सप्लीमेंट के थ्रू, तो वो बॉडी भी धीरे धीरे कंफ्यूज होगी, सिंथेटिक फॉर्म जा रहा है, हुँ। नेचुरल है। सो कहीं ना कहीं बाद में इशू आएगा, ठीक है? ट्राई टू डू इट नेचुरली, व्हाट आई सजेस्ट टू माय क्लाइंट्स, आई डोंट रिकमेंड दैट। ओके, बिकॉज़ इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन स्पेशली मैं टीवी शोज़ यस। वगैरह देखती हूँ, उसमें लोग बोल देते हैं, ये मैं लेती हूँ। ओके, इसका भी मतलब इट्स वेरी हाँ, कॉमन बट ऐसा नहीं कि कोई यस। मेडिकल कंडीशन इतनी वो हो। हाँ, नहीं-नहीं, लोग नॉर्मली भी हुँ, ले रहे हैं, बट क्यों ले रहे हैं? आप रूट कॉज़ पे काम नहीं कर रहे, आपको नींद क्यों नहीं आ रहा? अभी आप सिर्फ दबा रहे हैं, क्यों नहीं हाँ, आ रहा? हाँ। जस्ट वर्क ऑन इट, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन or meet an expert if you need. There's no हुँ, हुँ, harm in meeting some expert and knowing and analyzing your body. See, I हुँ, always say it's the body in which you have to live in. उसका टेक केयर नहीं करोगे ना, तो you will just struggle whole life, बहुत प्रॉब्लम होगा। It's the place. This body need to be carried till your last breath. Take care of येस, it. इसको येस, क्यों ऐसी चीज़ों के साथ प्ले करते हो? येस। सो थैंक यू विधि इतनी सारी अच्छी-अच्छी बातें हमें बताने के लिए और प्लीज़ हमें मोस्ट वेलकम। बताइए थोड़ा-सा अपने काम के बारे में एंड हाउ कैन माय लिसनर्स रीच आउट टू यू? Okay, so it's been 15 years I'm practicing. 2012 I founded my brand Physico, which helps individuals achieving their weight and health goals. So मेरे client like 2 year old से लेके 70 years तक है. I am a PCOS reversal coach. I help people in reversing PCOS, but as well as I'm a master's in dietetics. I'm a certified diabetic educator. I'm a certified skincare consultant. I'm certified, cosmetologist. एंड a lot of things. So मैं इस लोगों को हेल्प करती हूँ अचीविंग द वेट एंड हेल्थ गोल्स। आई मेक देम अंडरस्टैंड, सिर्फ वेट एक पैरामीटर नहीं है,
जिसकी वजह से यू नॉट हेल्दी, देयर लॉट मोर थिंग्स। सो Mhm. एनालाइज योर हेल्थ, सिर्फ वेट के पीछे मत भागो, एंड लर्न अलोंग विद यू कि कैसे हेल्दी ईटिंग इन होलिस्टिक वे में यू कैन अचीव योर journey. So I coach people, that means I teach people also while making them achieve their weight and health goals. So that उनको learning process हो, so once they leave me, they should be knowing how to do themselves. And as I said, I Mhm. work on 6 pillars of health. Not Hmm. only what you eat, my program works beyond that. It works on your body, mind, soul, energy. Because you need to work 360-degree way to, achieve your highest health. And if people want to connect with me, I have two clinics, one in Delhi and Gurgaon. Otherwise, I work online globally, and they can reach out to me on Instagram also. And yeah, on Google also, you can find details about me. Okay, and Yes. Vidhi, what's your Instagram handle? It's Dietitian Vidhi. Okay, okay. I'll Yeah. link everything in the show notes. Yes. And Vidhi, again, thank you so much for I'm being on the most podcast. welcome. आपने Yes, बहुत yes. अच्छा आंसर दिया, लाइक पॉइंट टू पॉइंट थे, बट स्टिल देयर वाज अ लॉट इन देम, लाइक heavy pointers. I really Uh, enjoyed talking to you. I also yeah, got same a lot here, of likewise. takeaways, and I'm sure कि हमारे listeners को बहुत सारा अच्छा Yeah. चीजें पता चलने वाली है आपको सुनने के Yeah. बाद. So thanks again for your time. Yeah, same here. I would love to have a talk with you. It was a really nice experience. Thank you.